ਇੰਨਾ ਰਹਿਣਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹੋ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਵੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਰਹੋ। ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮੰਨਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਫਿਰ? ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਗਈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੀ, ਨਹੀਂ ਨਾ ਟਿਕੀ। ਇੰਨਿਆਂ ਕੋਲ ਲੈ ਗਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਟਿਕੀ ਨਾ, ਤੇ ਜੋ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਮਰਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਆਖਰਤ ਸਵਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰਨ ਦੇਣੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਹੁਣ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਹੋ, ਸਿੱਖ ਹੋ, ਈਸਾਈ ਹੋ, ਕੌਣ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮਿਕਸ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਮਿਕਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਬਾਦਤ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕ, ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਬਾਦਤ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸੋ। ਆਪਣੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਉਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਤੇ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਤੇ ਕਰਦਾ ਨਾ ਦਿਲੋਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਮਰੇ ਦਾ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਚਲੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹੋ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ 'ਚ, ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹੋ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ 'ਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹੋ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਾਜ਼ੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਿਕਲੋ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਵਾਂ, ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਨਿਕਲੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਖੌਫ ਜ਼ਦਾ ਰਹੇਗੀ ਫਿਰ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਣਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਐਸਾ ਕਰ ਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹੋ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜ਼ੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ਼ੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਰਹੋ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਅਮਲ ਕੋਲ ਜਾਏਗੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਜਾਏ, ਕਿਧਰੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਦਾ, ਇਹ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਅਮਲ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਏ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਫਿਰ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਦਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਦਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਿਓ। ਇਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਿੱਧਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹੋ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖੁਸ਼, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਇੰਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਮੰਨ ਲਈ। ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਲਵਾ ਲੱਗ ਕੇ ਕਿਉਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਮੰਗਦੇ ਪਏ? ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਨਾ ਕਿਹੜਾ ਪਿਆ? ਤੂੰ ਮੰਨ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਹੁਣ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਰਲਦੀ ਮਿਲਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮਨਾਨਾ ਕਿਹੜੀ ਪਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮਨਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਨਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਹ ਜੋ ਜਾਵੇਗੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਜਾਵੇਗੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਨਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੀ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਇਹ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਾਦੂ ਕਿੰਨੇ ਕਰਾਇਆ, ਬਸ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਨਾ, ਰਲੋ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਸਤਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਬੈਠਣ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਵੋ। लोन कर लिए जी चेक? फिर कर लिए ले जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं आमिर कादिर। नाज़रीन आज हम फैसलाबाद में मौजूद हैं। आज से तकरीबन 15 से 20 दिन पहले हमें कॉल आई रमज़ान में। इनके साथ कुछ प्रॉब्लम ऐसी चल रही हैं कि जो इन्होंने पूरे आधे पाकिस्तान से इलाज करवा चुके हैं।
मुल्तान ये गई हैं, साहिवाल ये गई हैं, सिंध ये गई हैं, लाहौर से इन्होंने इलाज करवाया, फैसलाबाद पूरे से इन्होंने इलाज कराया, ये ठीक नहीं हो रही। ना इनको किसी ने कुछ बताया कि इनके साथ मसला क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है। तो बेहतर है हम कि इनकी ही ज़ुबानी सुने कि मसला क्या है। तो जैसे कि आपको पता है हमारा प्रोग्राम जिन ज़दा जादू और जिन्नात के हवाले से चलता है। हमारे प्रोग्राम में दिखाया जाता है कि जादू अगर है तो किसने करवाया है, कौन इसमें शामिल है, तो अगर जिन्नात है तो वो कौन से, अल्लाह ताला ने उनकी शक्लें कैसी बनाई है, हमारे प्रोग्राम दिखाया जाता है। तो बेहतर है नाज़रीन कि हम इनकी ज़ुबानी सुने कि इनके साथ मसला क्या चल रहा है, कब से हो रहा है, हो क्या रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई। मैंने आपको कॉल की थी रमज़ान में कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो आप कराची गए हुए थे, तो आपने बोला कि मैं आऊँगा तो फिर मैं आपका इलाज कर दूँगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे कहने पे मेरे घर पर आए हैं। और मैं जितनी परेशान थी, इंशाल्लाह आप मेरी इन परेशानियों का हल ज़रूर निकालेंगे। जहाँ जहाँ भी मैं गई हूँ मुझे हल, मैं आपके प्रोग्राम देखती थी, तो मैं देख रही थी कि आप लोगों का इलाज कर रहे हैं और लोग फैज़याब हो रहे हैं आपसे, इसलिए फिर मैंने आपका नंबर लिया और आपको कॉल की। और आज फैसलाबाद आप मेरे घर में आए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी, कोई मसला नहीं। अच्छा मेरी बहन, मुझे ये बताएं कि आपने मुझे बताया कि आपने पूरे आधे पाकिस्तान में से इलाज अपना करवा चुके हैं, तो वो किस चीज़ का इलाज करवा चुके हैं, कि मसला क्या था। हाँ जी भाई, मैं बहुत दूर दूर तक गई हूँ अपना इलाज करवाने, हिंद सिंध गई हूँ, पाकिस्तान के हर कोने में समझ लिया कि मैं गई हूँ। मुझे खुद नहीं पता मैं कितने लोगों के पास जा चुकी हूँ। मैं साहिवाल गई हूँ, फिर मैं लाहौर में काफ़ी जगह पे गई हूँ, फैसलाबाद में हर जगह पे गई हूँ, मुल्तान गई हूँ, मेरा इलाज कहीं से भी नहीं हुआ। तो किसी ने भी आपका इलाज किया ही नहीं। मुझे कुछ बताते ही नहीं थे, कह रहे आपको आराम चाहिए, आपको आराम आ जाएगा। मैं साल भी करवाती रही हूँ, मुझे आराम नहीं आया। मैं जाती रही हूँ 6 माह भी, 2 साल भी, 4 साल भी मैं जाती रही हूँ, लेकिन इन 15 सालों में से मेरे ये इलाज नहीं हुआ किसी से भी। यानी 15 साल से आप इलाज करवा रही हैं। सिंध आप गई हैं, साहिवाल आप गई हैं, मुल्तान आप गई हैं, लाहौर आप गई हैं, फैसलाबाद पूरे में से आपने अपना इलाज करवाया, लेकिन आपका इलाज नहीं हुआ कहीं से भी। हाँ जी, 15 साल से मेरा इलाज किसी से भी नहीं हुआ। अच्छा मेरी बहन, होता क्या था, मुझे ये बताएं। जब मेरी शादी हुई ना, शादी के 10 दिन बाद मेरे घर में इधर ससुराल में सहन में गोश्त आया, बोटियाँ थी काफ़ी बड़ी बड़ी, गिरा गोश्त आके? गोश्त सेन में आके गिरा है और खून के छींटे काफ़ी ज़्यादा आए हैं, ऐसे जैसे किसी ने कोई बकरा हलाल कर दिया हो। ये आपके सहन में आके सारा खून और वो गोश्त गिरा है? हाँ, ये सब कुछ मेरे सहन में आके गिरा है। तब 10 दिन हुए थे मेरी शादी को, तो मेरी सास ने कहा कि तुम साइड पे हो, जो मैं खुद साफ़ करती हूँ। तो मेरी सास ने जैसे उठाया, 3 माह बाद मेरी सास फोत हो चुकी। तो उसके बाद फिर इतनी परेशानियाँ आई हैं ना, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ तो आई। ये शादी से पहले भी कोई मसले थे आपके? नहीं, शादी से पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। शादी के बाद मेरी तबीयत ख़राब होना शुरू हुई है, उससे पहले कुछ भी नहीं था। शादी से पहले भी तबीयत खराब होती थी? नहीं, शादी के पहले बिल्कुल भी कुछ नहीं था। कभी भी मुझे ऐसा मसला महसूस नहीं हुआ। जो कुछ भी हुआ मेरी शादी के बाद ही हुआ है। शादी के बाद ही सब कुछ हुआ है? हाँ जी। आप कह रही हैं कि शादी के 10 दिन बाद खून के छींटे आके गिरे हैं, जैसे बकरा हलाल कर दिया किसी ने, गोश्त आके गिरा है, और 3 माह बाद आपकी सास फोत हो गई। हाँ जी, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। हमें खुद नहीं पता ये कहाँ से आया। अचानक हम उठ के बाहर सेन में गए हैं, तो गोश्त भी पड़ा हुआ है और खून भी पड़ा हुआ है। सब कुछ मेरी सास ने उठाया। उस तो अपने अपने हस्बैंड से उनको पता था ये बात, क्या हुआ? मैंने बताया था, क्या कहते हैं वो? तो वो कहते कुछ नहीं होता, अल्लाह खैर करेगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन मामला तो बिगड़ते गए हैं। तबीयत आपकी ज़्यादा ख़राब रहनी शुरू हो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होना शुरू गई? हो। फिर आपके हस्बैंड आपको ले गए कहीं पे? नहीं, वो नहीं मुझे कहीं लेके गए। क्यों? वो कहते तुम्हें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, खुद से सही हो जाओगी, खुद से सही हो जाओगी। मैंने उसे बोला भी कि मेरी तबीयत नहीं सही, ऐसे मामला तो मेरे साथ हो रहे हैं, लेकिन वो तवज्जो नहीं करते थे। और ये भी हुआ कि वो खुद बीमार पड़ गए, फिर उनकी भी डेथ हो गई। तो वो भी फोत हो गए आपके साथ? हाँ जी, वो भी फोत हो गए, ससुर भी फोत हो गए, और मैं अकेली अपनी ज़िंदगी के साथ जंग लड़ रही हूँ। आप क्या समझते हैं कि वो आप रूटीन में फोत हुए या किसी यही वजह थी? शायद कुछ ये वजह थी, यानी कि जिन्नात वगैरह जो मामला हमारे घर में चल रहे थे, कुछ ये मामला थे, क्योंकि हमारी बननी पड़ती थी, हमारे घर से झगड़ा ख़त्म नहीं होता था। और वो बीमार हो गए अचानक से, और उनके अंदर पानी की कमी हो गई। रात को लेके गए, खुद चल के गया हॉस्पिटल। दूसरे दिन मैं नाश्ता करवा कर आई हूँ।
अभी मैं घर के दरवाजे तक नहीं पहुंची तो उनकी डेथ हो गई थी। जो रिश्तेदार मेरा एहसास करते थे वो भी छोड़ गए। आप समझते हैं ये जो कुछ हुआ ये सारा जादू की वजह से हो रहा है? हाँ बिल्कुल, ज़ाहिर है जब मुझे सुकून नहीं होगा, मेरे साथ ये मामला थे, दौरे वगैरह पड़ने, खुद की होश ना रहनी। अच्छा मुझे ये बताएं, आप बता रही थी कि कुछ नज़र भी आता है वो? हाँ जी, मुझे ऐसे लगता है दिन में, ऐसे लगता है जैसे कोई वाइट कपड़ों में मेरे सेन में कोई आया है। मैं जब उठ कर देखती थी कोई भी नहीं, फिर उसके बाद मुझे यानी कि अगर वाइट कपड़ों में पहले नज़र आया, ब्लैक में फिर बाद में नज़र आता था। अच्छा वाइट कपड़ों में ब्लैक में कुछ और या बंदे या जो भी इस तरह के हाँ नजर जी, ऐसे जैसे किसी ने बुर्का पहना है तो कोई आया है। दिन के में रात में नहीं? रात में नहीं, दिन में। रात यकीन करें बेड को ऐसे ठुड्डे लगे, उनकी चीज़ों ने मुझे मारा। आपको मारा? और उनके सर नहीं थे। अच्छा उनके उन चीज़ों के सर नहीं थे? सर नहीं थे। और जिनके 5-6 जाने थे जो मेरे बेड को मारे, और मैं उठ के बैठ गई, लेकिन मुसलसल वो। अच्छा 5-6 लोग थे जो जिनके सर नहीं थे हाँ, सर नहीं थे, और वो आपके बेड को मार रहे मार रहे हैं। और उन्होंने भी ये आवाज़ें, मैं सोई हुई थी अपने बेड पे, तो यकदम से ना खड़का होने की आवाज़ सुनाई दी। जब मैंने आँख खोली देखा उनके सर नहीं थे, 5-6 लोग थे और शूज़ उन्होंने पहने हुए और मेरे बेड को मुसलसल मारते जा रहे हैं। अच्छा 5-6 लोग थे और उनके सर नहीं थे? नहीं थे। और फिर मैं उठी हूँ, फिर उस भाई ने भी आवाज़ें सुनी, कह रहे मैं सुन रहा हूँ कि तुम्हारे बेड को कोई मार रहा है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो मेरे पास आके देख ले। फिर मैंने जैसे आपके मैं प्रोग्राम देखती थी शौक से, और मैंने देखा कि काफ़ी लोगों का आपने इलाज करवाया, इस वजह से मैंने भी कहा कि चलो मैं भी इलाज करवाती हूँ, मैं भी देखूँ कौन है मेरा दुश्मन, कौन मेरे साथ ऐसा कर रहा है। इस वजह से मैंने आपको बुलाया अपने घर पर और आप मेरे घर में आए। मैं यही देखना चाहती हूँ कौन लोग हैं जो मुझे अकेली को परेशान कर रहे हैं। यानी कि आप देखना चाहते हैं कि आपके ऊपर जादू किसने करवाया? आपके ऊपर जादू है भी नहीं है, चीज़ें मलूक हैं, है क्या? बिल्कुल, मैं जानना चाहती हूँ ताकि अगर मेरे अंदर कोई वहम भी है वो भी निकल जाए। वहम भी है तो वो भी निकल जाए। जैसे नाज़रीन आपने सुना कि वहम, अगर वहम है तो वो भी निकल जाए। नाज़रीन जैसा कि आपको पता है हमारा प्रोग्राम जिंदा था, हमारे प्रोग्राम दिखाए जाते जादू जिन्नात के हवाले से, कि अगर जादू है तो किसने किया है। इसी तरह इन्होंने हमें कॉल किया, आज हम इनके घर में फैसलाबाद मौजूद है। नाज़रीन हम प्रोसेस में की जानिब बढ़ते हैं, जानने की और देखने की कोशिश करते हैं कि वाकई इनके साथ कोई ऐसी महलूक है। वो सर कटे लोग 5-6 जो उन्होंने बताया वो मौजूद हैं, सर कटे इंसान मौजूद हैं। वाकई इनके ऊपर जादू है या इनका एक वहम है, या इनको किसी ने वहम में डाल दिया है, या ये खुद वहम में पड़ गई हैं। तो हमारे साथ ही गया प्रोसेस में जानिब बढ़ते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। दूसरी पढ़ना ये नज़र आ रहे हैं मैंने कितने हैं जी? 2। 2 पुतले हैं। हाँ जी। दोनों मर्द के पुतले लग रहे हैं, औरत के लग रहे हैं? एक जानवर दी शक्ल च बनया होया ते एक जिवें रूई वाला पुतला हुंदा वाइट कलर च। ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਹੱਥ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਇੱਥੇ। हाँ जी, एक भयानक जिहा जानवर महसूस हो रहा है। ठीक है। ते एक पुतला है जिस तरह कोई कपड़े दा बनाया हुंदा है। कपड़े का पुतला बनाया। हाँ जी, नहीं है ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ। अच्छा जी, किस तरह का जी? भुलिया बोलेंगे रास्ता। फेस ਦਾ ਮਾਸ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ। ठीक है। नोज भी जैसे लटक रही है, मत्थे ਦਾ ਮਾਸ ਵੀ लटक ਰਿਹਾ। बड़ा खौफनाक ड्रोन है। हाँ जी। हाँ जी, पुतला है, जानवर की शक्ल है ठीक है। और नाल ही उल्लू की शक्ल बन गई। अच्छा यहाँ पे देखे कुछ है, यहाँ पे नीचे कॉर्नर पे ये मर्द की शक्ल नजर आ रही है, ये बीच में बिल्कुल जैसे कोई मूछों वाला इंसान नहीं होता, ये बिल्कुल बीच में ये है ना, किसी मर्द की शक्ल है। ये भी है, ब्लैक कलर की है या कोई वाइट है, लेकिन है बाबा ही है, कोई बुजुर्ग है अजीब सा। अच्छा कितनी एज का लग रहा है जी बंदा ये?
कोई है 50 70-80 साल नहीं है। नहीं ज़्यादा नहीं, 60 का है, 60 है, जवान लग रहा है ज़्यादा। 55-60 के करीब है। हाँ जी हाँ इतना जी। ही है। इसका हुलिया बोले जरा किस तरह के? ऐसे जैसे मूछें भी हैं और ब्लैक कलर की मूछें हैं और यानी चेहरा गोल है। चेहरा गोल है, मूछे ब्लैक कलर की हाँ है। जी वो नज़र आ रही हैं किधर जैसे किधर देख रहे हैं? ऐसे भी इधर को देख रहा है, सामने को। लेफ्ट साइड पे देख हाँ रहे हैं। जी लेफ्ट साइड को देख रहा है। अच्छा ठीक है। चेहरा काली मूछे हैं, चेहरा गोल है। गोल है और ऐसे लग रहा है जैसे ऐनक डाली हुई है। नजर वाली है। हाँ जी नज़र वाली ऐनक वाइट कलर की। अच्छा उम्र कितनी बताई है आपने? 55 साल इतनी होगी। तकरीबन 55 साल उम्र बताई है आपने। ऐनक लगाई है, नजर वाली लगाई है। हाँ जी नज़र ठीक है। वाली। गोल चेहरा है, हाँ जी और कान ऐसे बड़े बड़े से लग रहे हैं। बड़े बड़े से कान है। हाँ जी ऐसे ही लग रहा है। बाल ब्लैक है, काले बाल है। काले बाल, जैसे रंग नहीं किया होता बालों को, हाँ, ऐसे हैं। बालों को जैसे कलर कलर लगाया- किया हो। हाँ जी ऐसे। कलर लगाया हुआ है। अच्छा, ये बंदा है जी, अब इसको देखें ये कौन लगता है? कभी देखा है तो वो तो तेरा नानान भैया लग ये रहा वाला। है शक्ल। करें जी उधर। तो कौन लग रहा है जी? नानान भैया होगा या ऐसी कोई शक्ल, इनके ही रिश्तेदारों में से ही है कोई। अच्छा, यानी कि इनके रिश्तेदारों को आप जानते हैं? अच्छा, ये बंदे को आप जानती हैं? हाँ जी लग रहा है जैसे वही है। अच्छा, यानी आप इनके जानते हैं इस बंदे को? नंद का ये शोहर लग रहा है मुझे। तो मेरी बहन, आप इस बंदे को जानती हैं? हाँ जी। यानी कि आप इसको जानती हैं? देखा देखा लग रहा है रिश्तेदार हैं आपके? शायद, मुझे लग रहा है। रिश्तेदार ही लग रहा है। रिश्तेदार ही है। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे पुतला है। पुतला है। हाँ जी। औरत का लग रहा है, मर्द का? नहीं दो पुतले हैं, लड़कियों के हैं दोनों। दोनों लड़कियों के? हाँ जी बाल बने हुए हैं। बाल में मैं इसलिए पूछ रहा था कि लड़कियों के या मर्द के? नहीं नहीं लड़कियों के हैं, दो लड़की हैं। दो लड़की हैं। एक तो हो ऐसे गई जैसे ये। हाफ कटिंग नहीं बालों के ठीक होते। है, एक तो लड़की हो गई ये जो बैठी हुई है, ये इसका पुतला बनाता था। हाँ जी एक और लड़की भी लग रही है। दूसरी अब कौन है ये हम नहीं जानते, लेकिन एक तो पुतला इनका। हाँ जी अच्छा, यहाँ पे देखें, यहाँ पे कुछ है, यहाँ ये कॉर्नर पे नीचे पे। कौन मैदान मैदान सा है, दरख्त जैसे लग रहे हैं। अच्छा ठीक है, ये यहाँ पे चेक करें इस कॉर्नर पे। जंगल जंगल ये रखना है। जंगल ही है। जंगल लग रहा है जी। हाँ जी जंगल है, काफी घना घना जंगल लग रहा है। हाँ जैसे बोर्ड की दाढ़ी लमक रही होती, शाखें लटक रही होती। बड़ा सा जो दरख्त जिसको बोर्ड कहते हैं, हाँ बोर्ड का जी, दरख्त कहते हैं। वैसे शाखें लटक रही हैं। मेरा हाथ कांप रहा है। अच्छा ठीक है, इसके अलावा तो कुछ नहीं और? नहीं कुछ नहीं, बस चलें। रास्ते जंगल है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जैसा कि हम प्रोसेस में गए जानने की और देखने की कोशिश की अल्लाह ताला की मदद से कि इनके ऊपर बाकी जादू है या कोई इनका वहम है, तो बेहतर है कि हम इनकी ज़ुबानी सुने। जादू तो इनके ऊपर निकल आया है। अब इन्होंने क्या क्या देखा है तो इनकी ही ज़ुबानी सुनते इन्होंने क्या क्या देखा है। अच्छा मेरी बहन, मुझे ये बताएं कि आपने क्या क्या देखा? मैंने देखा है कि एक कॉर्नर पर दो पुतले बने हुए हैं, एक मर्द का और एक औरत का है, और उसके नीचे एक उल्लू की शक्ल बनी हुई है, और एक मर्द की शक्ल बनी है जिसके बाल काले हैं, जैसे कलर किया होता है। अच्छा, बालों को जैसे कलफ लगाया होता है, कलर किया होता है, बड़ी एज के बंदों ने। बड़ी एज के 50-55 के करीब है वो। और एक कॉर्नर में मैंने देखा है कि जंगलात हैं, बहुत घना जंगल है। और पहले मैंने वो देखा था कि एक शक्ल बनी है जिसका मांस लटक रहा है, और चेहरे का सारा मांस लटक रहा है उसका, और शक्ल नहीं बन रही, अजीब खौफनाक सी, बड़ी ड्रोनी सी शक्ल थी। बहुत ड्रोनी सी, कोई भी उसका उज़ा नज़र नहीं आ रहा था। ठीक है। और ये मर्द को देखा जो हमारे करीबी रिश्तेदार हैं। अजीज है आपके? हाँ जी अजीज, जानते हैं आप इनको? हाँ जी हम जानते हैं उनको। ठीक है, मैं बैठे हैं। अच्छा बहन, आप मुझे ये बताएं आपने क्या क्या देखा? मैंने भी यही बस दो शक्लें बनती हुई देखी हैं, और एक लड़की की शक्ल और एक लड़के की, और नीचे उल्लू देखा, और एक आदमी की शक्ल देखी जो। वो आदमी को जानते हैं आप? हाँ जी इनके रिश्तेदार ही हैं। इनके रिश्तेदार? हाँ जी, और दूसरी बात जंगलात देखा है, काफी ठीक है। जंगलात, यानी कि जंगल है कोई गहरा। ठीक है ठीक है। अच्छा तो ऐसा है कि नाज़रीन, ये जो बैठ जाएं आप, ये जो इन्होंने बंदा देखा है जिन्होंने बताया जी काली मूछें हैं, चेहरे सर पे हिजाब लगाया, बालों को जैसे कलर करते हैं, कलफ लगाते हैं लोग, बड़ी एज के बंदे, इनका अजीज़ है, जानते हैं। ये वो बंदा है जिन्होंने इनके ऊपर जादू करवाया, जिसके लिए इन्होंने हमें बुलवाया देखने के लिए कि वाकई हमारे ऊपर जादू है, किसी ने हमारे ऊपर कुछ किया हुआ है या हमें सिर्फ वहम हो गया है। तो नाज़रीन, वहम तो नहीं, जादू निकला है इनके ऊपर, ये बंदा करवाने वाला। इनके साथ, इसके साथ साथ इनके साथ पुतला बनाया गया है जिसके ऊपर जादू किया गया है।
दूसरा पुतला इन्होंने बताया कि मर्द का था वो इनके मियाँ का पुतला, एक इनके मियाँ का। इनका अल्लाह बख्शे फोत हो गए हैं, दुनिया में मौजूद नहीं है। तो एक इनके मियाँ के ऊपर जादू और इनके ऊपर किया। जैसे आप बोल इनके दिनों पहले कहा जी हमारे घर में ब्लड आया है, खून के लोथड़े आए हैं, गोश्त गिरा है, तो ये चीज़ें इनको बंदे भी साहिब नज़र आते हैं। तो ये सारी चीज़ें इनके साथ अटैच इनके घर में मौजूद हैं। तो नाज़रीन स्पेशल आपने इनके लिए दुआ करनी है और साथ आपने हमारे लिए दुआ करनी है कि हम इनके काम का वसीला बन जाए। करने वाली ज़ात तो अल्लाह ताला के बंदा वसीला ही बंदा, तो कोशिश करने आप हम इनके काम का वसीला बन जाए। तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आमिर कादिर को ज़्यादा दिन नए प्रोग्राम के साथ फ्राइडे को मुलाकात होती है इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़।